we will study 18 electron rule and to find number of metal-metal bonds in any complex. This topic of inorganic chemistry is really very important for MSc students and for CSIR NET and also for any general competitive exam of chemistry. So let's study 18 electron rule. First of all, what is 18 electron rule? Valence electron of any central atom in any complex plus number of electrons gained by metal from ligands must be equal to 18. Compounds with 18 electron are most stable. So now the question arises, why compounds with 18 electrons are most stable? So if we look at transition metal complexes, as we study in our last video, 3D series, 4D and 5D series, these have electronic configuration in this way: 4s 3D 4p, 5s 4D 5p, 6s 5D 6p. So if all have one s orbital, one d and one p orbital, if we fill all these orbitals completely, then they have 18 electrons. So that's why the compound with 18 electrons are most stable. So first example, here nickel is any central metal atom. Electronic configuration of nickel is 4s2 3d8. So here valence electron is 10. So nickel have valence electron 10. And CO carbonyl donate 2 electrons to metal. So here 4 carbonyl, then if one carbonyl donate 2 electrons, then 4 carbonyl donate 8 electrons. After adding we get 18. So this complex obey 18 electron rule because we add number of valence electron plus electrons gained from ligands. Next example, here Fe, iron is central atom. This configuration, so it has 8 valence electron, 1 Fe, so here 8 electrons. If 2 electrons donated by 1 CO, then 5 CO donate 10 electrons. After adding we get 18. So this complex also follows 18 electron rule. Now next example is Fe2CO9. So here अब तक जो हमने डिस्कस किए उनमें सिर्फ एक मेटल एटम था और अब यहाँ पर हमारे पास 2 मेटल एटम हैं. सो कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe इज 3d6 4s2. So first of all we have to find out the number of metal bonds in this complex. So this is the formula to calculate metal bonds: 18 multiply n minus total valence electrons divided by 2. Here n is number of metal atoms. So students, अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये फाइंड आउट करना है, देन अब देखिए यहाँ पर Fe एटम्स कितने हैं 2, देन 18 इंटू 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अब 2 Fe, एक Fe एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 2 के लिए 16 होंगे. सो 9 कार्बोनिल donated 18 electrons to this 2 Fe metals. So after adding these we get here 34 electrons. So now total valence electron 34 divided by 2, therefore 34, 2 divided by 2 1. So here one metal bond. So Fe bond, अब एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. सो यहाँ पर एक बॉन्ड है 2 मेटल्स के बीच में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. सो अब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें 36 मिलेगा. नाउ 36 अब ये 2 Fe एटम्स के लिए है, बट एक के लिए अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाई 2 18 इलेक्ट्रॉन. सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इफ वी हैव मोर देन वन मेटल गिवन. So in next CO2 carbonyl 8, cobalt have 3d7 4s2 electronic configuration. So for 2 CO, for 1 CO it has 9 valence electrons, for 2 it 18, then 8 carbonyl donates 16 electrons to 2 cobalt. Now total valence electrons from here is this. After adding these, this is 34.
So number of metal bonds here 18 multiply n means 2 metal atoms here. 2 minus total valence electrons 34 divide by 2. After calculating we get 1. So here also one metal bond CO bond. So it donate 2 electrons. After adding these 18 plus 16 plus 2 it becomes 36 for 2 cobalt atoms. For one cobalt atom it is 18 electrons. So this complex also follows 18 electron rule and hence most stable complex. So in next complex, this one manganese CH3CO5 are ligands here. So students अब इसमें दो तरह के ligands हैं CO कार्बोनिल एंड CH3 मिथाइल ग्रुप. सो अब हमें चेक करना है कार्बोनिल हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है मेटल एटम को. तो CH3 का अगर चेक करें तो CH3 मेटल एटम से कुछ इस तरह से अटैच होगा. देन जो CH3 है वो मेटल एटम्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देगा. ठीक है. सो मैंगनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 देयरफॉर इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 5 CO डोनेट 10 इलेक्ट्रॉन्स टू मैंगनीज. For 1 CH3 it donate 1 electron. After adding we get 18. So this complex follow 18 electron rule and hence most stable. Now this is Cp2 cobalt. अब Cp2 देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा confusion हो सकता है. Cp2 means cyclopentadienyl. cyclopentadienyl इनाइल. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. अब देखिए अगर इसको हम मेटल से अटैच कर देते हैं सो यहाँ पर ये मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा. अब देखिए ये कोई एरोमेटिक रिंग है. ठीक है. सपोज अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के 2 इस बॉन्ड के और अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ से देगा. सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल. और ये कुछ Cp इस फॉर्म में दिया होता है तो आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना. बस ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके देखना है और यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा. सो यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैं. अगर एक 5 का डोनेशन देता है तो 2 5 मल्टीप्लाई 2 10 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देंगे. कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस वन. सो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 10 दिस इज 19. एज ओवरऑल चार्ज अब किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज हमें दिया हो तो अगर प्लस हो तो वो हमें माइनस करना है और अगर माइनस यहाँ पे हो तो वो हमें ऐड करना है. ठीक है. सो यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस करेंगे इसमें से. देन वी गेट 18 इलेक्ट्रॉन. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स. अब देखिए स्टूडेंट्स कितना भी बड़ा आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सभी का रूल जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का वो सब में सिमिलर रहेगा. सो आपको किसी भी कंपाउंड को देखकर घबराना नहीं है. बस जस्ट चेक करना है कि कौन सा लिगेंड कितना अपना डोनेशन मेटल को देगा. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 तरह के मेटल एटम हैं कोबाल्ट एंड आयरन. 2 कोबाल्ट एटम्स हैं और 2 आयरन हैं. लिगेंड्स हैं CO एंड दिस वन PPH और 2 ये ब्रैकेट के बाहर है. अब देखिए इसका मतलब क्या है. μ4 ये होता है हैप्टिसिटी नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू मेटल एटम. अब अगर इसकी हैप्टिसिटी इस वाले लिगेंड की 4 है देन इट मीन्स इसके 4 डोनर एटम्स जो हैं वो मेटल के साथ अटैच्ड हैं. यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा मेटल एटम को. सो अब अगर एक लिगेंड 4 का डोनेशन देगा देन 2 लिगेंड्स कितने का देंगे 8 का. सो स्टूडेंट्स देखिए कोबाल्ट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 हेयर 2 कोबाल्ट एटम्स सो 2 मल्टीप्लाई 9. For Fe 8 valence electrons here 2 Fe so 2 multiply 8. CO donate 2 electrons so 11 into 2 plus अब एक ये वाला ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो 2 करेगा 2 into 4 so टोटल 64 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स. अब यहाँ पे हमारे पास 4 मेटल्स हैं. इनके बीच के बॉन्ड्स हमें नहीं पता कि जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. टू फाइंड नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड दिस फॉर्मूला 18 मल्टीप्लाई n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2. सो 18 हेयर 4 मेटल एटम्स हेयर 4
माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, डिवाइड बाय 2, दिस इज 72 माइनस 64, कैलकुलेट 4. सो स्टूडेंट्स हैव 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स. अब एक मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 मेटल मेटल बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे. सो टू कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल, दिस इज 64 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 72. For 4 metal atoms, 72 divided by 4, it gives 18 electrons. So this complex follows 18 electron rule and hence more stable complex. So students, आगे देखिए, हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके डिस्कस करेंगे हर तरह के, ताकि आपको किसी भी एग्जाम्पल में इसके डाउट ना रहे. नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 2 मेटल एटम हैं आयरन के, CO4 पाई Cp. अब देखिए यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी को अगर हम चेक करें तो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है Cp, ठीक है, वो ब्रिज फॉर्म में भी कितने का अपना डोनेशन देगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स का. जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देता है. सो देखिए Fe के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस it gives so for metal metal bond here 2 Fe, so one metal metal bond donate 2 electron, for this CO donate 8 electrons, and one cyclopentadienyl donate 5 electrons, so 2 donate multiply 2. After calculating we get 36, but for one Fe atom it is 18, so it follows 18 इलेक्ट्रॉन रूल. तो इस तरह से हम किसी भी कम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा. अब फॉलो करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, कि अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है देन द कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो है वो बहुत स्टेबल है. सो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको 2-3 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं कि इनमें से स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बताइए, तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हेल्प से वहाँ पर बता सकते हैं. नेक्स्ट देखिए CpMoCO3. अब देखिए ये क्या है, MO. अगर आपको इसकी स्पोज नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो जाके चेक करिए, उसमें मैंने आपको सभी ट्रिक्स बताई थी कि इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं. आप देखिए ये है MO एटम, इसके लिए क्रोमियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सो ये इसी सीरीज़ में आता है. सो इसके लिए भी, मोलिब्डेनम के लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6. सो हेयर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर Cp डोनेशन 5, फॉर CO इट्स 2 मल्टीप्लाई 3 17 इलेक्ट्रॉन. सो दिस कॉम्प्लेक्स डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, हेंस नॉट सो मच स्टेबल. नेक्स्ट इज ReCO5. अब देखिए ये हमारे पास मेटल है. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमें यहाँ से पता चलेगी. जो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए जाके, वहाँ पे आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे. देखिए ये इसी की सीरीज़ में आता है. मैंगनीज़ का होता है 7, सो इसका Re के लिए भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. फॉर CO 2 मल्टीप्लाई 5. अब PF3 की बात करें तो देखिए जैसे NH3 के केस में होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन दे सकता है. सो स्टूडेंट्स 2 एंड ओवरऑल चार्ज प्लस, सो -1 हेयर, देन इट्स 18 इलेक्ट्रॉन. अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है Fe और इस तरह से है. अब ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स हैं. एक का डोनेशन कितना होता है 5, इधर भी 5. Fe के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, आफ्टर एडिंग इट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. अब देखिए एक होता है EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ये इसमें और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कुछ सिमिलैरिटी है, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स. 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस शायद इलेक्ट्रॉन थे मेटल के, बट यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. बस यही डिफरेंस है EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में. देखिए एग्जांपल के लिए, अब इसके हमने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते थे, बट यहाँ पे इसका हम एटॉमिक नंबर लेंगे. मैंगनीज के लिए एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका डोनेशन कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 5, इट्स 35. सो इट डज नॉट फॉलो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आपको पता कैसे चलेगा, अगर कैलकुलेट करने के बाद
ये किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटायर कर लेता है, सपोज 36, 54, 86, देन वो EAN, it has EAN, otherwise not. So one important thing, a compound obey 18 electron rule, also obey EAN rule. अगर कोई कंपाउंड आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो मस्ट बी EAN रूल को भी फॉलो करेगा. सो स्टूडेंट, यही मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ पे कि अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पता है तो EAN रूल भी कुछ उससे डिफरेंट नहीं है. इस सपोज कोई क्वेश्चन है, अगर पूछा है कि EAN रूल को फॉलो करेगा या नहीं, तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को वहाँ पर चेक करके देख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब तक हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जानने के लिए उसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते आए. बट जो एग्जामिनर है वो जो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. सपोज यहाँ पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया है. अब उन्होंने बोला कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है. हमें यहाँ पर मेटल निकालना है कि ये मेटल कौन सा है. सो मेटल को हम लोग X मानेंगे. CO डोनेशन देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 × 7. सो ओवरऑल चार्ज 1, सो -1. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट here plus 14 - 1 is equal to 18. So X is equal to 5. This X is number of valence shell electron of metal. So 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके लिए होते हैं? वेनेडियम के लिए. सो मेटल एटम इज वेनेडियम. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं, इनके लिए हम चेक करते हैं. चलो, सो दिस कॉम्प्लेक्स इज विल्किंसन रिएजेंट. Wilkinson reagent, very important reagent. So for RH rhodium, number of valence shell electron is 9. So this PPH3 donate 2 electrons. For 3 × 2, Cl donate 1 electron. So students, हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो Cl है वैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देता है, बट Cl अगर इस फॉर्म में दिया हो यानी ब्रिज फॉर्म में तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देता है. मस्ट रिमेंबर दिस. सो टोटल इज 16 इलेक्ट्रॉन है. फॉर सेकेंड इट इज जीसस सॉल्ट. फॉर PT वैलेंस शेल 10 इलेक्ट्रॉन्स. Cl डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. 3 Cl डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे पाई बॉन्ड है. अब एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. सो हियर डोनेशन फॉर C2H4 इज 2. ओवरऑल चार्ज इज माइनस, सो एड 1 इन दिस. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 16. दिस कॉम्प्लेक्स Cr 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. CO डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 × 2. अब NO के लिए देखिए, नाइट्रोसिल होता है हमारे पास. एक नाइट्रोसिल होता है लीनियर फॉर्म में और एक होता है बेंट फॉर्म में. लीनियर में होता है NO पॉजिटिव, बेंट में NO नेगेटिव. जो लीनियर नाइट्रोसिल है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देता है और बेंट वाला देता है 1 इलेक्ट्रॉन का. अब अगर कहीं पे स्पेशली मेंशन किया गया है लीनियर या बेंट तो आप बता देंगे, बट अगर मेंशन नहीं किया है गाइस तो आप उसे लीनियर कंसीडर करेंगे. लीनियर कितने का डोनेशन देता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का. सो यहाँ पे क्रोमियम के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 है. 1 CO 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देता है. 3 CO 3 × 2. NO लीनियर है, सो 1 लीनियर नाइट्रोसिल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. 2 नाइट्रोसिल डोनेट 3 × 2. सो 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज MnCO6. Here Mn is 7 electrons as valence shell electron. CO donates 2 × 6 and 7 + 12 is 19. So it does not follow 18 electron rule. नाइट्रोसिल की जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जब कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे तब इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो लीनियर है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देता है और बेंट 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देता है. नेक्स्ट देखिए जल्दी से, ये CSIR नेट प्रॉब्लम्स हैं कुछ. यहाँ पे देखिए हमें क्या है, हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ का ये दिया है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकालने को बोला है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो H है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? 1. मैंगनीज के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7. फॉर CO इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन.
but we have to find the number of CO ligands here, carbonyl ligands here. So put X is equal to 18 because it follows 18 electron rule. After adding 8 to multiply X, 18, and we get X is equal to 5. So value of X is 5 here, as it obeys 18 electron rule. Now similarly this one, Na donate 1 electron, for cobalt it 9 electron valence shell electron, CO donate 2 electrons and Y here. So similarly we calculate it is 4. So value of Y is 4 and the complex is this one. So इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कुछ मिसिंग करके दिया है तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल. सो स्टूडेंट्स अब 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास. यहाँ पर देखिए, अब देखिए हमने जो कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया, हम क्या स्टडी करते आए कि जो कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है. बट जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ओबे करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल को. ओके, ये हमेशा याद रखना कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं, नॉट 18 इलेक्ट्रॉन रूल. एंड जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, यानी जो नॉर्मल हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो अपने ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे, यानी उनका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना होगा. अब अगर कोई 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, यानी उनका जो सम बन रहा है, जो हम 18 बनाते थे वो 17 आ रहा है, तो वो स्पीसीज़ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अगर 19 है तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये कुछ 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, इसको आपको रिमाइंड रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जनरल आपकी MSc के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And one information for MSc students that please subscribe my channel on Telegram if you want MSc chemistry full 2-year handwritten notes. Thank you so much for watching.